دوستو میں ریاض احمد آپ سبوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن کے اس ادبی چینل پر، جو NCERT کا بک ہے غالب کے احد پر 50 سوالات و جوابات میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے دوستو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں کہ غالب کے احد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے دور کے جو شعراء ہیں اس میں بہادر شاہ ظفر، دوسرا نام ہے ذوق کا، تیسرا غالب اور چوتھا ہے مومن۔ تو پہلے دور کے جو شعراء ہیں غالب کے احد میں، اس میں پہلا نام جو ہے یہ بہادر شاہ ظفر ہے، دوسرا ہے ذوق، تیسرا ہے غالب اور چوتھا ہے مومن۔ اور دوسرے دور میں جو ہے وہ ہے محسن کاکوری، اور دوسرا نام ہے جلال لکھنوی اور تیسرا ہے داغ دہلوی۔ بہادر شاہ ظفر یہ جو ہے 1775 عیسوی دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور 1862 عیسوی رنگون میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور دوسرا نام ہے شیخ ابراہیم ذوق کا، یہ 1788 سے 90 دہلی میں پیدا ہوئے، جو وفات جو ہے ذوق کا وفات یہ 1854 عیسوی دہلی میں ہوا۔ تیسرا نام ہے غالب کا، تو 1797 عیسوی آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 عیسوی دہلی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے مومن۔ مومن جو ہے یہ دہلی میں 1800 سے 1801 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کی جو وفات ہے یہ 1852 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور حکیم مومن کی جو موت ہے وہ کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی۔ چلیے اب آبجیکٹو سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ سوال نمبر 1 ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی جو پیدائش ہے وہ کہاں ہوئی تھی؟ اے میں ہے میرٹھ، بی میں ہے کشمیر، سی میں ہے دہلی اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ان کی جو پیدائش ہوئی تھی بہادر شاہ ظفر کی وہ دہلی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے بہادر شاہ ظفر کے والد کا نام کیا تھا؟ اے میں ہے صدر الدین خان، بی میں ہے اکبر شاہ ثانی، سی میں ہے عالمگیر اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے جو والد ہیں ان کا نام تھا اکبر شاہ ثانی۔ سوال نمبر 3، بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت کتنے برسوں تک قائم رہی تھی؟ اے میں ہے 10 برس، بی میں ہے 15 برس، سی میں ہے 20 برس اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی جو بادشاہت تھی یہ 20 برسوں تک قائم رہی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر، آخری مغل بادشاہ جو تھے بہادر شاہ ظفر، جب ملک بدر کر کے رنگون بھیجا گیا تو وہ جلا وطنی کے عالم میں کتنے برس کی عمر میں انتقال ہوئے تھے؟ اے میں ہے 84 برس، بی میں ہے 86 برس اور سی میں ہے 87 برس اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپشن نمبر آپ کا سی بالکل رائٹ ہو جائے گا، 87 برس کی عمر میں انتقال ہوئے تھے بہادر شاہ ظفر۔ سوال نمبر 5 ہے بہادر شاہ ظفر نے کل کتنے دیوان یادگار چھوڑے ہیں؟ اے میں ہے 3، بی میں ہے 4، سی میں ہے 5 اور ڈی میں ہے 6۔ بہادر شاہ ظفر نے ہے یہ کل 4 دیوان، آپ کا آپشن نمبر بی بالکل درست ہو جائے گا، 4 دیوان اپنے یادگار چھوڑے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ فارسی کی نثری کتاب خیابان تصوف کس کی ہے؟ فارسی کی جو نثری کتاب ہے اس کا نام ہے خیابان تصوف، یہ کس کی تصنیف کی ہوئی ہے؟ اے میں ہے مومن، بی میں ہے غالب، سی میں ہے ظفر اور ڈی میں ہے داغ۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، ظفر۔ سوال نمبر 7 ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اے میں ہے 1770 عیسوی، بی میں ہے 1775 عیسوی، سی میں ہے 1780 عیسوی اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر بی، 1775 عیسوی دہلی میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ شیخ ابراہیم ذوق کب پیدا ہوئے؟ یہ آپشن میں ہے 1788 سے 90، بی میں ہے 1785 سے 77 اور سی میں ہے 1772 اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو شیخ ابراہیم ذوق کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 1788 یا 90 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ کا آپشن نمبر اے بالکل درست جواب ہے۔
सवाल नंबर 9 है कि ज़ौक़ की पैदाइश कहाँ हुई थी। सवाल नंबर 9 है कि ज़ौक़ की पैदाइश कहाँ हुई थी। ए में है आगरा, बी में है दिल्ली, सी में है मेरठ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ज़ौक़ की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई थी, तो ये दिल्ली में हुई थी। और दोस्तों ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ की जो पैदाइश है वो 1788 या 90 ईस्वी। आप इसको कमेंट करने से पहले एनसीईआरटी का जो बुक है उर्दू ज़ुबान और अदब की तारीख़, जिससे बीपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं और चैलेंज भी उसी बुक से एक्सेप्ट किया जाता है, आप उसको एक बार चेक कर लें। सवाल नंबर 10 है कि किस शायर की इब्तदाई तालीम हाफिज़ ग़ुलाम रसूल के मकतब में हुई थी। ए में है गालिब, बी में है ज़ौक़, सी में है मोमिन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इब्तदाई तालीम हाफिज़ ग़ुलाम रसूल के मकतब में हुई थी ज़ौक़ की। ज़ौक़ की जो इब्तदाई तालीम हुई थी वो हाफिज़ ग़ुलाम रसूल के मकतब में हुई थी। सवाल नंबर 11 है कि किसके तवस्सुत से ज़ौक़ की लाल किले के दरबार तक रसाई हुई थी। ए में है अब्दुल रज़ाक, बी में है मौलाना मोहम्मद बाक़र, सी में है शाह नसीर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह नसीर के तवस्सुत से जो है ज़ौक़ की लाल किले में दरबार तक रसाई हुई थी। क्योंकि सवाल नंबर 12 है कि बहादुर शाह ज़फ़र की तख्त नशीनी पर मुबारकबाद के तौर पर कसीदा पेश किया गया, तो बादशाह की तरफ से मलिकुल शुरा का खिताब हुआ। मलिकुल शुरा का खिताब किसे मिला था। ए में है शाह नसीर, बी में है ज़ौक़, सी में है गालिब और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज़ौक़ को मलिकुल शुरा का खिताब जो दिया था ये बहादुर शाह ज़फ़र ने ही दिया था। सवाल नंबर 13 है कि कसीदा गोई में महारत की बिना पर खाकानी हिंद का खिताब किसे मिला। क्योंकि कसीदा गोई में सौदा के बाद दूसरा नंबर जो है ये ज़ौक़ का ही आता है। तो कसीदा गोई की महारत के बिना पर खाकानी हिंद का खिताब किसे मिला था। ए में है गालिब, बी में है मोमिन, सी में है ज़ौक़ और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज़ौक़। 14 है कि लाई हयात आई क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए अपनी खुशी चले, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये किसका शेर है। ए में है मोमिन, बी में है दाग, सी में है गालिब और डी में है ज़ौक़। तो ये जो है ज़ौक़ का शेर है। सवाल नंबर 15 है कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी। ए में है दिल्ली, बी में है आगरा, सी में है मेरठ और डी में है लखनऊ। तो गालिब की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई थी, तो आगरा में हुई थी। और आगरा में दूसरा कौन सा शायर पैदा हुआ था, तो वो है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश जो है ये आगरा में हुई थी। नंबर 16 है कि गालिब कब पैदा हुए। ए में है 1795 ईस्वी, बी में है 1798 ईस्वी, सी में है 1796 ईस्वी और डी में है 1797 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, 1797 ईस्वी आगरा में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 17 है कि किस शायर के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान है। ए में है ज़ौक़, बी में है गालिब, सी में है मोमिन और डी में है दाग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त हो जाएगा। अब्दुल्ला बेग खां किसके वालिद का नाम है, तो गालिब के वालिद का नाम है अब्दुल्ला बेग खां। सवाल नंबर 18 है कि नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के खिताब से कौन शायर नवाजे गए थे। ए में है गालिब, बी में है ज़ौक़, सी में है ज़फ़र और डी में है मोमिन। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गालिब। सवाल नंबर 19 है कि महर नीमरोज़ में गालिब ने किसकी तारीख़ लिखी है, जो कि फ़ारसी में लिखी गई है। महर नीमरोज़ ये जो है फ़ारसी में लिखी गई किताब है, तो गालिब ने किसकी तारीख़ में लिखी है। ए ऑप्शन में है फ़ारसी रोज़नामचा, बी में है मुग़ल ख़ानदान की, सी में है दिल्ली की इमारत की या डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुग़ल ख़ानदान की। महर नीमरोज़ की जो गालिब ने किताब लिखी है उसमें मुग़ल ख़ानदान की तारीख़ लिखी गई है। सवाल नंबर 20 है कि दस्तंबू जो फ़ारसी रोज़नामचा है जिसमें वाक़यात दर्ज हैं। दस्तंबू ये जो है फ़ारसी रोज़नामचा है जिसमें वाक़यात दर्ज हैं, ये किस
के वाक़यात इसमें दर्ज हैं। ए में है मुग़ल दौर के वाक़यात, बी में अपने भाई के, सी में 1857 ईस्वी के वाक़यात और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। 1857 ईस्वी के वाक़यात दर्ज हैं। और 1857 ईस्वी किस तारीख के लिए मशहूर है? तो ये गदर की तारीख के लिए मशहूर है। सवाल नंबर 21 है कि क़ाते बुरहान कब शय हुआ? ए में है 1860 ईस्वी, बी में है 1861 ईस्वी, सी में है 1862 ईस्वी और डी में है 1864 ईस्वी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, 1864 ईस्वी। क़ाते बुरहान कब शय हुआ? तो ये 1864 ईस्वी में शय हुआ। नंबर 22 है कि उर्दू खतूत का मजमुआ उदे हिंदी कौन सा मजमुआ है या कितने नंबर का है? ए में है पहला मजमुआ है, बी में है दूसरा मजमुआ है, सी में तीसरा मजमुआ है या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू खतूत का जो मजमुआ है उदे हिंदी वो कौन सा मजमुआ है? तो ये पहला है। उदे हिंदी पहला मजमुआ है। सवाल नंबर 23 है कि गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ का नाम क्या है? ए में है उर्दू मुअल्ला, बी में है उदे हिंदी, सी में है दस्तंबू और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला मजमुआ था उदे हिंदी और दूसरा जो मजमुआ है वो हो जाएगा आपका उर्दू मुअल्ला। ऑप्शन नंबर गालिब तकरीबन कब से उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज़ किया? ए में 1848 ईस्वी, बी में 1849 ईस्वी, सी में 1850 ईस्वी और डी में 1851 ईस्वी। तो गालिब तकरीबन कब से उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज़ किया था? ये 1849 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। गालिब के खतूत की ज़ुबान को किस नाम से जाना जाता है? ए में नसरी तहरीर, बी में है ख़तीबाना अंदाज, सी में है अफसानवी अंदाज और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफसानवी अंदाज। गालिब के खतूत की जो ज़ुबान थी उसको अफसानवी अंदाज के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 26 है कि आफाकी शायर किसे कहते हैं? ए में है मोमिन, बी में है गालिब, सी में है ज़ौक़ और डी में है ज़फ़र। तो ये ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त हो जाएगा। आफाकी शायर किसे कहा जाता है? तो ये गालिब को कहा जाता है। सवाल नंबर 27 है कि किस शायर के कलाम की सबसे बड़ी खूबी है कि वो नए माने और नए तासुर से दो चार कराता है? ए में है मोमिन, बी में है दाग, सी में है गालिब और डी में है मोहसिन काकोरी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गालिब। कि शायर के कलाम की सबसे बड़ी खूबी है कि वो नए माने और नए तासुर से दो चार कराता है। तो नए माने और नए तासुर से जो दो चार कराता है वो है गालिब। सवाल नंबर 26 है कि गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ से गमज़े खुमार देखना, ये शेर किसका है? ए में है गालिब, बी में है मोमिन और सी में है ज़फ़र। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोमिन। सवाल नंबर 29 है कि तुम मेरे पास होते गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये किसका शेर है? तुम मेरे पास होते गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये किसका शेर है? ए में है मोमिन, बी में है गालिब, सी में है ज़फ़र और डी में है दा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, मोमिन। सवाल नंबर 30 है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्त इम्कां को एक नक्श पाया, ये किसका शेर है? ए में है मोमिन, बी में है गालिब, सी में है ज़ौक़ और डी में है मोहसिन काकोरी। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, गालिब का शेर है ये। सवाल नंबर 31 है कि 1869 ईस्वी में किस शायर की वफ़ात हुई थी? ए में है मोमिन, बी में है गालिब, सी में है शेफ्ता और डी में है एक से ज़्यादा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि शेफ्ता की जो पैदाइश हुई थी, वफ़ात हुई थी, वो 1869 ईस्वी में हुई थी और गालिब की वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 33
सवाल नंबर 33 है, किस शायर की पैदाइश दिल्ली में हुई थी? ए में है मोमिन, बी में है ज़ौक़, सी में है गालिब और डी में है एक से ज़्यादा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि मोमिन की पैदाइश भी हुई थी दिल्ली में और ज़ौक़ की भी पैदाइश हुई थी दिल्ली में। सवाल नंबर 34 है कि मोमिन की इब्तदाई तालीम किसके मदरसे में हुई थी, जहाँ से उन्होंने अरबी व फ़ारसी ज़ुबानें सीखी? मोमिन की जो इब्तदाई तालीम है वो किसके मदरसे में हुई थी, जहाँ से उन्होंने अरबी व फ़ारसी की ज़ुबानें सीखी? ए में है मौलाना मोहम्मद बाकर, बी में है अब्दुल रज़ाक, सी में है शाह अब्दुल कादिर और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह अब्दुल कादिर के मदरसे में जो है मोमिन ने इब्तदाई तालीम हासिल की थी, जहाँ से उन्होंने अरबी व फ़ारसी की ज़ुबानें सीखी थी। इस शायर का मोरिसी पेशा तब था। ए में है ज़ौक़, बी में है मोहसिन काकोरी, सी में है मोमिन और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। मोमिन का जो ख़ानदानी पेशा या मोरिसी पेशा था वो था तब। सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 36 है कि किस शायर की मौत 52 बरस की उम्र में कोठे से गिरकर हुई थी? ए में है नुसरती, बी में है मोमिन। हकीम मोमिन खां मोमिन की जो मौत हुई थी वो कोठे से गिरकर हुई थी और 52 बरस की उम्र में इनकी मौत हुई थी। 1801 ईस्वी में ये पैदा हुए थे हकीम मोमिन खां मोमिन, और 1852 ईस्वी में इनकी जो मौत हुई थी वो कोठे से गिरकर हुई थी। सवाल नंबर 37 है कि मोमिन की वफ़ात कहाँ हुई थी? ए में है लखनऊ, बी में है दिल्ली, सी में है मेरठ और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में हुई थी। सवाल नंबर 38 है कि दस्त, बाजू व शिकस्त के ज़रिए कौन सा शायर अपने हादसे की तारीख़ निकाली थी? दस्त, बाजू व शिकस्त के ज़रिए कौन सा शायर अपने हादसे की तारीख़ निकाली थी? ए में है गालिब, बी में है जलाल लखनवी, सी में है मोमिन और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोमिन। सवाल नंबर 39 है कि तारीख़ गोई में किस शायर को मलका हासिल है? ए में है दाग दहलवी, बी में है मीर, सी में है मोमिन और डी में है गालिब। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोमिन। सवाल नंबर 40 है कि सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, बर्क़ पर कांधे पर लाती है सबा गंगा जल। ये शेर किस शायर का है? ए में है ज़ौक़, बी में है गालिब, सी में है मोहसिन काकोरी और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त हो जाएगा, मोहसिन काकोरी का ये शेर है। सवाल नंबर 41 है कि नातिया कसीदे के लिए कौन सा शायर मशहूर है? ए में है ज़ौक़, बी में है अमीर मीनाई, सी में है मोहसिन काकोरी और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, मोहसिन काकोरी ये नातिया कसीदे के शायर के लिए मशहूर है। सवाल नंबर 42 है कि मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए में है लखनऊ, बी में है दिल्ली, सी में है काकोरी और डी में है कोई नहीं। तो मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी काकोरी में। सवाल नंबर 43 है कि अमीर मीनाई कहाँ पैदा हुए? ए में है लखनऊ, बी में है दिल्ली, सी में है कलकत्ता और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, अमीर मीनाई की पैदाइश जो हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। सवाल नंबर 44 है कि अमीर मीनाई के उस्ताद का नाम क्या था? ए में है अब्दुल रज़ाक, बी में है शाह अब्दुल कादिर, सी में है असीर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अमीर मीनाई के उस्ताद का नाम क्या था? तो अमीर मीनाई के उस्ताद का नाम था असीर। अमीर मीनाई के उस्ताद का नाम था असीर। वाजिद अली शाह से किस शायर का ताल्लुक़ था? ए में है अमीर मीनाई, बी में है ज़ौक़ और सी में है मोहसिन काकोरी। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर मीनाई। सवाल नंबर 46 है कि हकीम ज़ामिन अली किस शायर का असल नाम है? हकीम ज़ामिन अली जो है ये किस शायर का असल नाम है?
ए में है अमीर मीनाई, बी में है जलाल लखनवी, सी में है दाग दहलवी और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त है, हकीम ज़ामिन अली ये जलाल लखनवी का असल नाम है। सवाल नंबर 47, इरशाद सुल्तानी और हिदायत सुल्तानी किसकी तसनीफ़ है? इरशाद सुल्तानी और हिदायत सुल्तानी किसकी तसनीफ़ है? ए में है जलाल लखनवी, बी में है अमीर मीनाई, सी में है मोमिन और डी में है इनमें से कोई नहीं। था आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। इरशाद सुल्तानी और हिदायत सुल्तानी ये अमीर मीनाई की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 48, सवाल नंबर 48 है, क़वाइद के मौजू पर सरमाया ज़ुबान उर्दू और मुफीदुश शेर किसकी तसनीफ़ है? ए में है अमीर मीनाई, बी में है जलाल लखनवी, सी में है ज़ौक़ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क़वाइद के मौजू पर जो है सरमाया ज़ुबान उर्दू और मुफीदुश शेर ये जलाल लखनवी की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 49, नवाब मिर्ज़ा किस शायर का नाम है? ए में है मोमिन, बी में है मीर, सी में है दाग और डी में है शेफ्ता। तो नवाब मिर्ज़ा दाग का असल नाम है, दाग का नाम है। नवाब मिर्ज़ा किस शायर का नाम है? तो ये दाग का नाम है। सवाल नंबर 50 है कि दाग की तसानीफ़ में कुल कितने दीवान हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। इसके 4 दीवान हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। करता हूँ कि गालिब के वहद से आने वाले एक भी सवालात आपके जो है सो इससे बाहर नहीं आने की संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों इसमें तारीख़ पैदाइश और वफ़ात में ये NCERT का जो बुक है उर्दू ज़ुबान व अदब की तारीख़, इसमें और SCERT बुक ये दोनों में कुछ फ़र्क है। और BPSC ने तो NCERT को ही चैलेंज में माना था, इसलिए आप इसी को पक्का मान करके आप अपना तैयारी करें। इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफ़िज़।